Hi, today we'll be solving a text passage. Okay, what is it seems to you? A passage? Right, but how it's going to be? This is going to be something like this. A passage will be given, and where few blanks will be left for you, there you have to fill in the blanks with appropriate words. Okay, here they are saying appropriate words. See, they sometimes you will not be able to find out the most the correct, which is completely made for this blank only word. Okay, you have to find out the most appropriate word out of the options given. Okay, अ, वो शॉर्टकट्स देखो, इंग्लिश में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, राइट? यू हैव टू नो द लैंग्वेज, यू हैव टू नो द बेसिक्स ऑफ ग्रामर, यू हैव टू नो द वोकैबलरी, यू हैव टू नो द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स. देर इज़ नो शॉर्टकट. Okay, there is no trick, there is no shortcut, but there are just few advices, there are just few things you have to keep in mind. Like for this, आप पढ़ेंगे तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने फर्स्ट ब्लैंक भरा, ऑप्शन देखा और फटाफट भर दिया. नहीं, ऐसा मत करिएगा. पहले एक बार पूरे पैसेज को पढ़िएगा फटाफट, और ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या क्या हो क्या रहा है पैसेज में. ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज आर ओनली ऑफ द स्टोरी व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल वार्मिंग. सी, सिर्फ इतने से हमें नहीं समझ में आ रहा कि हमें क्या भरना चाहिए. मटीरियल ऑफ द स्टोरी नहीं, इशू ऑफ द स्टोरी, मोस्ट ऑफ द स्टोरी. मोस्ट ऑफ द स्टोरी भी कोई वर्ड तो होता ही है. होल ऑफ द स्टोरी, ये भी कुछ तो होता ही है. पार्ट ऑफ द स्टोरी, या होल और पार्ट एकदम अपोजिट है. हाउ डू यू नो विच इज़ द अप्रोप्रिएट और करेक्ट वर्ड टू बी फिट इन हियर? सो read the complete passage. Greenhouse gases are only of the story when it comes to global warming. Changes to one part of the climate can additional changes to the way the planet absorbs or reflect energy. These secondary changes are climate feedback, and they could more than double the amount of warming caused by carbon dioxide alone. The primary feedbacks are to snow and ice, water vapors, clouds, and the carbon cycle. Perhaps the most well feedback comes from melting snow and ice in northern hemisphere. Warming temperatures are already a growing percentage of Arctic sea ice. Okay, see, this way you read the whole passage and try to make some sense out of it. Now we start filling. You will do it. You will complete read the complete passage. Okay, due to I shouldn't be wasting so much time on reading for myself. It has to be for you, so I'm just telling you. Okay, coming to the blanks. ग्रीन हाउस गैसेज आर ओनली ऑफ द स्टोरी व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल वार्मिंग. आप आगे देखेंगे चेंजेस टू वन पार्ट ऑफ क्लाइमेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, काफ़ी और बातें क्लाइमेट चेंज के बारे में हो रही है. तो आप कह सकते हो कि ग्रीन हाउस गैसेज के अलावा ये और भी चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहा है. सो होल ऑफ द स्टोरी नो, मटीरियल नो, मोस्ट ऑफ द स्टोरी, issue of the story, part of the story, somewhere from part or most will not fit here. Okay, so part of the story here. Greenhouse gases are only part of the story, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही है ग्लोबल वार्मिंग में, और भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, उनकी वो आगे बात कर रहा है. चेंजेस टू वन पार्ट ऑफ द क्लाइमेट कैन एडिशनल चेंजेस टू द वे. ओके, जब ये बात कर रहा है कि एक पार्ट में चेंजेस हो रहा है और एडिशनल चेंजेस और भी हो रहे हैं. ठीक है, तो समथिंग लाइक दिस, वन पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज कैन एडिशनल चेंजेस, मतलब एक कुछ ऐसा आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक पार्ट दूसरे पार्ट को अफेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? कैन रेज एडिशनल चेंजेस, not making sense. Brings, kind of. Okay, one part can change, brings changes, additional changes. Stop, no. Refer, no. So cause, one part of the climate can cause additional changes to the way. See, जब आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि ऐसा सा वर्ड आना चाहिए, उसके बाद you have to try to fit in the word. Whichever is the appropriate word, you use that. So changes to one part of the climate change can
cause additional changes to the way the planet absorbs. So, cause. Next is these secondary changes are climate feedbacks. सी आप कुछ देख रहे हैं कि जो सेकेंडरी चेंजेस है वो क्लाइमेट फीडबैक्स है. दे आर नॉट सेंस्ड, दे आर नथिंग, they are not termed, they are called. These secondary climate changes are called climate feedbacks. ठीक है, आपको पढ़ते पढ़ते उसका एटलीस्ट सेंस पता होगा तो आप वर्ड का यूज़ भी प्रॉपर कर पाएंगे. सी इस पैसेज के लिए कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको हार्ड कोर ग्रामर जानना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. ठीक है, आपको ऑलमोस्ट वर्ड्स का यूसेज जानना बहुत ज़रूरी है. मतलब आप देखेंगे इन वर्ड्स में से कोई भी ऐसे टफ वर्ड नहीं है, ऐसा वर्ड नहीं है कि आपको उसका मतलब ही ना पता हो, बट द करेक्ट यूसेज विच हैज़ टू बी द word which completes the sentence and makes sense out of it. So ये बहुत ईजी हो सकता है अगर आप पैसेज को समझना जानते हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कुछ ऐसा ही होता है कि आपको उसमें पैसेज समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसमें भी आपको पैसेज समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. उसका क्रक्स जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका सेंस समझना, ऑथर का लैंग्वेज, ऑथर का टोन, वो कहना क्या चाह रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Okay, they are called climate feedbacks and they could more than double the amount of warming caused by carbon dioxide alone. ठीक है, the primary feedbacks are to snow and ice, water vapors, clouds and carbon cycle. मतलब जो प्राइमरी फीडबैक्स के बारे में जब ये बात कर रहा है तो ये कहना चाह रहा है कि रीज़न टाइप्स दे रहा है. आप देखें तो द प्राइमरी फीडबैक्स आर रीज़न टू नहीं हो सकता है, आर ड्यू टू हो सकता है, आर बिकॉज टू सेट नहीं होता है, आर रिजल्ट्स टू बिल्कुल नहीं, आर दोज टू नहीं, आर ड्यू टू स्नो एंड आइस, वाटर वेपर्स. ओके, परहैप्स द मोस्ट वेल फीडबैक कम्स फ्रॉम मेल्टिंग स्नो एंड आइस इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. सी यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये कुछ तो मेल्टिंग स्नो एंड आइस इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के बारे में जब बात कर रहा है तो मोस्ट वेल डन फीडबैक बिल्कुल नहीं बन रहा है. मोस्ट वेल नोन येस, बिकॉज उसको पता है कि वो फीडबैक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से और आइस से आ रहा है. बेस्ट ऑर्ड नहीं, रूल्ड फीडबैक नो, सेड फीडबैक वेल सेड एक वर्ड फ्रेज हो सकता है, ठीक होता है, बट नॉट हियर. सो आवर आंसर विल बी नो. Next is warming temperatures are already a growing percentage of Arctic sea ice exposing dark ocean water during the sunlight of summer. ये आप देखेंगे warming temperatures are already ice के साथ क्या करेगा, ice को वो melt करेगा. Are melting snow ice, a growing percentage of Arctic sea ice exposing dark ocean water during the यहाँ पे ये देखिए क्या कहना चाह रहा है, सनलाइट ऑफ समर. मतलब वार्म टेम्परेचर है, आइस मेल्ट हो रहा है, सनलाइट बढ़ रहा होगा या एग्जिस्ट कर रहा होगा, समथिंग लाइक दैट. एब्सेंट नहीं, ट्रबल्ड नहीं, मेकशिफ्ट नहीं, सीजिंग तो मतलब बिल्कुल ही रुक जाता, बिल्कुल ही नहीं. परपेचुअल, yes, perpetual is something which is present continuously. So during the perpetual sunlight of summer. Snow cover on land is also in many areas. अब जब आइस मेल्ट हो रही है तो सीधी सी बात है कि स्नो कवर भी कम हो रहा होगा. ठीक है, सो मैन्युफैक्चर्ड नहीं, जनरेटिंग नहीं, आउट ऑफ dwindling and descending. Dwindling is suiting here, so dwindling in many areas. in the of snow and ice, अब स्नो और आइस कम हो रहा है तो हम सीधा सा देखेंगे कि ख़त्म हो रहा है, तो प्रोग्रेस नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं, समथिंग लाइक रिड्यूस्ड एंड एब्सेंस fits here. So in the absence of snow and ice, these areas go having bright sunlight reflecting surfaces that cool the planet to having dark sunlight absorbing surfaces that more energy. So energy is coming more, so something like bring or excess. So surfaces that bring more energy into the earth system and cause more warming. So
How this is how we solve a passage, the complete tone of the passage.